We now request our technical team to relay the AV of Honorable Chief Guest Sri Haribhau Bagde ji, Honorable Governor of Rajasthan. Can we have AV please? Honorable Shri Haribhau Kishanrao Bagde, the 45th Governor of Rajasthan, is a respected statesman and senior leader from Maharashtra, known for his integrity, simplicity, and decades of dedicated public service. Born on 17th August 1945 in Chitte Pimpergaon village of Chhatrapati Sambhajinagar district, Shri Bagde has been associated with the Rashtriya Swayamsevak Sangh since childhood. Popularly known as Nana in political circles, he played a key role in strengthening the Bharatiya Janata Party in the Marathwada region and has been one of the most influential grassroots leaders. He was first elected to the Maharashtra Legislative Assembly in 1985 from Chhatrapati Sambhajinagar East and went on to serve 6 terms as an MLA. Over the years, he earned wide respect as a people's leader, known for his deep connect with rural communities and his contribution to the welfare of the weaker and backward classes, as well as to women's empowerment. In 2014, Honorable Shri Bagde ji was elected Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, where he conducted the proceedings with fairness and dignity. A former cabinet minister in the government of Maharashtra, he is also regarded as a prominent figure in the cooperative and dairy movements in the state. On 27th of July 2014, he was appointed as the Governor of Rajasthan by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. We are honored to welcome Shri Haribhau Kishanrao Bagde to MIT Art Design and Technology University. Thank you. I now request Professor Sneha Vagatkar to read. And I now request Honorable Pro Chancellor, Professor Dr. Mangesh Ji Karat sir, to felicitate Honorable Governor of Rajasthan, Sri Haribhau Bagde ji. With your huge round of applause, Honorable Chief Guest, Governor of Rajasthan, Sri Haribhau Bagde ji. I now request Professor Sneha Vagatkar to read the citation in honor of Honorable Sri Haribhau Bagde ji. Thank you. Respected sir, your inspiring journey reflects a life devoted to integrity, leadership, and public service. Your early association with the Rashtriya Swayamsevak Sangh and lifelong commitment to social and cooperative movements laid the foundation for a career dedicated to people's welfare. For over 6 decades, you have been respected leader in Maharashtra's political and cooperative landscape. Elected 6 times consecutively to the Legislative Assembly, your compassionate and people-centric approach has earned the enduring trust of citizens. As Cabinet Minister, you led key portfolios such as Employment Guarantee Scheme, Horticulture, and Food and Civil Supplies, ensuring meaningful progress for rural communities. As Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, you upheld the highest ideals of democracy, discipline, and fairness. Honored with the Sahakar Bhushan Award in 2014 by the Government of Maharashtra, you have also represented India in several international delegations, fostering global cooperation in agriculture and governance. As Chancellor of all state universities and President of the State Soldiers Board and Indian Red Cross Society, you continue to guide institutions with distinction, and on 31st July 2024, you assume the office of the Governor of Rajasthan, continuing to serve with wisdom, humility, and vision. Honorable Sir, your life is a living testament to simplicity, sincerity, and service. With deep respect and admiration, we take great pride in presenting and conferring this citation of honor in recognition of your exemplary leadership and distinguished service to the nation. Can we please have a huge round of applause, ladies and gentlemen, to
Our Honorable Chief Guest, Shri Hari Bhau Kisan Rao Bagre ji, Honorable Governor of Rajasthan, at the 8th Convocation Ceremony of MIT Art Design and Technology University, Pune, Bharat. Thank you. A huge round of applause. Thank you, and we are honored to invite Honorable Sri Hari Bhau Bagre ji to deliver the convocation address. मंच पर उपस्थित प्रकुलाधिपति डॉक्टर मंगेश जी कराड़, डॉक्टर लक्ष्मीधर जी बेहरा, डॉक्टर उपाधि प्राप्त आर रमन जी, सुभाष जी त्यागी, कुलगुरु डॉक्टर राजेश जी एस, डॉक्टर सुनीता जी कराड़, डॉक्टर ज्योति जी धाकणे, डॉक्टर जब्बार जी पटेल, सभी मंडल प्रबंधक, अकादमिक काउंसिल के सदस्यगण, सभी डीन, डायरेक्टर, अधिकारी, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मीडिया बंधु, छायाचित्रकार भाई और बहनों, प्रतिष्ठित MIT कला, डिजाइन एंड और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़, संस्थापक MIT समूह संस्थान और अध्यक्ष MIT कला, डिजाइन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, माननीय अतिथि निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा, कार्यकारी अध्यक्ष और प्रति कुलपति डॉक्टर मंगेश कराड़ जी, कुलपति डॉक्टर राजेश एस जी, प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्य, मैं MIT ADT विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के रूप में इस महत्वपूर्ण उपाधि उपलब्धि तक पहुंचने के लिए छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं, उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल के मैदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को भी बधाई देता हूं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि विषय ही आज इस दीक्षांत समारोह में 3,334 छात्र और छात्राएं ने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित उपाधियों और सम्मान प्राप्त किया है। स्कूल और कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में मैदान न हो तो वो विद्यार्थियों पर एक प्रकार का अन्याय भी होता है और ऐसे सभी स्कूल में वो खेल के मैदान होना चाहिए। चूंकि ये दिन अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करता है, मैं आपको परिवर्तनकारी ज्ञान की आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अपने यहाँ जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया है, जो कौशल आपने विकसित किया है और इस योग्य विश्वविद्यालय में आपने जो मित्रताएं बनाई है, उन्होंने आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया है। आपको याद रखना चाहिए कि सच्ची शिक्षा किताबों, इमारतों, पाठ्यक्रम के सीमा से भी पर होती है।
ये एक अंतहीन खोज है। मैं आत्म खोज और व्यावसायिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पूर्णता की यात्रा है। यहाँ आध्यात्मिक भी चलता है। मैं देखा सभी और घूमकर, तो उसकी याद भी मुझे आती है। और शिक्षा अपन जो लेते, हमारे बहुत से प्रोफेसर पाठ्यक्रम में बताते, पाठ्यक्रम में सिखाते, पर पाठ्यक्रम के आगे, पाठ्यक्रम के अलावा भी कई पुस्तकें भी अपने को मिलनी चाहिए, लेना चाहिए। और जो विषय के संदर्भ में वो पाठ्य पुस्तक का बाहर भी ज्ञान जो होता है वो भी विद्यार्थियों को देना चाहिए। उससे उसकी प्रगति होती है, उसकी दृष्टि बढ़ती है। आपको एक ध्यान दूंगा, हमारे महाराष्ट्र में एक अच्छे शिक्षक हुए, बाद में प्रोफेसर हुए, श्रीमा माटे। उनको कई किसी ने पूछा क्या कर रहे सर, तो वो बोल रहे थे चिंता करी तो विद्यार्थ्याची चिंता करतो, असं ते सांगत होते। और इसीलिए उनकी एक विद्यार्थिनी, जिनका नाम आपको सबको मालूम होगा, वो विद्यार्थिनी शांता शेळके, बहुत अच्छी कवियत्री है। उन्होंने लिखा है कि हमारे शिक्षक जो हमको पढ़ाते थे तो विषय छोड़ के भी जाते थे, बाजू का भी उसको बोलते थे, समाज का बोलते थे, देश का बोलते थे, लेकिन हमको उस समय लगता था कि विषय के बाहर का ज्ञान है। लेकिन हमारी दृष्टि उससे विशाल हो गई। ये हमको ध्यान में अभी आ रहा है कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसा ही पढ़ाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता, ये भी आप सिखाई जा रही है। शिक्षा जो है वो समझना और जानना। शिक्षा का मतलब है समझना, सब कुछ समझना और सब कुछ जानना। हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी जाएंगे, उनके कौन सा ही प्रश्न पूछे तो उसकी राय उसके मन में आना चाहिए, उसका उत्तर उसके मन में आना चाहिए, तो ही सही शिक्षा। हम तो सही शिक्षा का कोई मीटर नहीं। तुमने कितनी शिक्षा प्राप्त की, कितनी शिक्षा आपको मिली और कितनी शिक्षा आपने आपके दिमाग के कंप्यूटर में वो फीड कर ली, इसकी कोई अभी तपासने का मीटर नहीं है। मीटर तो एक ही है, मीटर एक ही है कि जो अपन परीक्षा देते हैं, बिगर कॉपी की परीक्षा जिस विश्वविद्यालय में होगी, जिस कॉलेज में होगी, जिस स्कूल में होगी, वो सही शिक्षा होगी। बच्चों को कॉपी करने का ध्यान भी नहीं आना, उसको ध्यान भी नहीं आना। इतनी शिक्षा, इतनी पढ़ाई उनको देनी चाहिए, ध्यान ही नहीं करना। इतना ज्ञान उसको देना चाहिए, तभी वो कॉपी का ध्यान उसको नहीं आएगा। और यही ऐसा ही शिक्षा देने का उपक्रम चालू है। आपके इधर भी मिलता, ये विश्वविद्यालय भी करता है। मैं मंगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपने जो गुरुकुल निकाला है, पहली से यहाँ 12वीं तक भी शिक्षा है, कॉलेज का शिक्षा भी है, पहली से पढ़ाई देना और वो गुरुकुल के समय से देना। अपने देश में गुरुकुल बहुत थे, अंग्रेजों ने उनके गैजेट में लिख कर रखा है, अंग्रेजों ने, कि इंग्लैंड में जितने स्कूल नहीं थी उससे ज्यादा स्कूल ये भारत में थी, कोई इतने गुरुकुल हमारे पास थे। लेकिन ये सब गुरुकुल बाद में उन्होंने बंद किए हैं। और मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग से लेकर आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी नवाचार और जनसंख्या के लाभांश तक वैश्विक समस्याएं, चाहे वे कितनी कठिन क्यों न हो, आपके लिए
स्थायी प्रभाव डालने के अवसर है। जैसे ही आप परिसर में पर एक नई दुनिया के कदम रखते हैं, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कुछ अगला कि आप हमेशा के लिए पॉजिटिव विचार करें, सकारात्मक विचार करें। नेगेटिव विचार, नकारात्मक बात आपने मन में ना आए। हमेशा के लिए पॉजिटिव विचार किया कि आपका जीवन भी अच्छा होगा। और इससे हमेशा खुद पर विश्वास रखे, अपने पर विश्वास रहना। भले ये दुनिया आपसे सहमत हो, लेकिन आपका अपने पर विश्वास जरूर रखो। समर्पण की भावना रखो। मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं, समर्पण की भावना। समर्पण में पैसे देना ऐसा नहीं होता है। समर्पण समय का भी बात होता है, समय भी देना है। समर्पण आने हम राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति या समाज के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, अनपढ़ लोगों के प्रति, जनजातियों के प्रति हमारा क्या समर्पण है। हमारा जो समर्पण है वो समर्पण भी अपने करना चाहिए। अपना जितना देना उनको, आप ज्ञान दो, समय दो और कुछ दो, पर ये समर्पण भावना होनी चाहिए। देश के प्रति समर्पण भावना होती है। आपको याद होगा सावरकर जी के मन में जो था, सावरकर जी ने कहा, सागरा प्राण तळमळला, सागरा प्राण तळमळला ने मुझे मातृभूमीला, माझ्या मातृभूमीला लवकर घेऊन चाल, माझा प्राण तळमळलाय। ही भावना कैसी आती मन में? उसका राष्ट्र पे प्रेम है, देश पे प्रेम है, समाज के प्रेम है। आप भी घर जाते हो कभी कभी दूर से, तो आप लोगों को लगता है कि घर कब जाऊं, कर मेरे सभी लोगों को कब मिलूं, ऐसा अपने को लगता है। महिला को भी लगता है कि अपन कब मायर को जाऊं, कब हमें उधर जाऊं और कब हमारे माँ पिताजी को मिलूं, ऐसा लगता है। तसा वैसा ही भारत के देश के लिए बोलना चाहिए। और ऐसे बहुत उदाहरण है। और एक उदाहरण मैं देता हूं कि सावरकर ने जी ने तो स्वातंत्र के इसमें जितनी शिक्षा भोगी, जितनी हाल अपेक्षा हुई, उसकी हाल अपेक्षा किसकी नहीं हुई। कोई लोग फांस पे गए, पर फांस पे गए भी तो उन्होंने भारत माता की जय बोला, उन्होंने गीता हाथ में लेकर बोला, गीता हाथ में रखकर फांसी ली। ऐसे भी बहुत थे। लेकिन अपने यहाँ भी आप लगेगा कि हमारे महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के नाम के एक बड़े क्रांतिकारक हो गए। हम छोटे थे जब हम लोग हमको बोलते थे कि वासुदेव बलवंत फड़के और इंग्रज की छाती धड़के, इंग्रजों की छाती धड़ धड़ करती थी, ऐसा उनका दरारा था। वो वासुदेव बलवंत फड़के पकड़े गए, कोर्ट में उनको शिक्षा हो गई और कोर्ट की शिक्षा के बाद उनको शिक्षा भोगने का हिंदुस्तान के बाहर जाना था, मंडाले तुरुक में जाना था, जहां हमारे तिलक जी ने भी शिक्षा भोगी है। वो मंडाले म्यांमार में है, पूरी ब्रह्म देश पे था। ब्रह्म देश भी हमारे देश का हिस्सा था। ऐसे मंडाले में जाकर शिक्षा भोगनी थी, तो उन्होंने कोर्ट के बाहर आए। वासुदेव बलवंत फड़के, कुछ पुलिस उनके साथ थे, कोई लोग उनके साथ थे। उन्होंने बाहर आने के बाद जमीन में से एक मुठ भर बाती ली, ओंजल भर मिट्टी ली और अपने धोती के एक कोने पे बांधी और बोले अभी चलो। लोगों ने पूछा ये मिट्टी क्यों ली, ये मिट्टी क्यों ली? तो उन्होंने कहा मैं अभी दूसरे देश पे जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, उधर मेरा शायद जो होगा, लेकिन आखिरी दम में मैं मेरे देश की मिट्टी नीचे पसरूंगा, उसके मेरा शरीर रहेगा और अंतिम श्वास मेरे भारत के मिट्टी पे छोड़ दूंगा। ये उनकी भारत के लिए उनकी इच्छा थी और उन्होंने वही किया। ये अपने देश के बारे में
मिट्टी के बारे में जो लोग को लगता है ना, वो ये लगना चाहिए। और इसीलिए अपन अपनी दूरदृष्टि भी रखिए, अपन अनुभव भी रखिए, और जो अपनी आप उत्साह सभी न खोए, असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाए, असफलता सफलता की सीढ़ी बनाए। और इसीलिए कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, आप ध्यान रखिए। और उत्साह भी रहे, सत्यनिष्ठ रहो, आप सभी सत्यनिष्ठ रहो। यही सब गुरुकुल में सिखाया जाता था पहले। हमारे पास नैतिकता के बारे में बहुत बोला है। नैतिकता हमारे पास थी, हमारे लोग पूर्व लोग बोलते थे, हमारे कीर्तनकार भी बोलते थे कि हम यहाँ से किसी हम यात्रा को निकले तो सोना हम काठी को बांध कर लेकर जाते थे, कोई इसको हाथ नहीं लगाता था। यही बात थॉमस लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में इंग्लैंड में जो भाषण किया है गवर्नर के सामने, उसमें बोली है। वो थॉमस मैकाले बोलता है कि भारत को अपन ज्यादा दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। क्यों? तो उनके पास नैतिकता बहुत है, ईमानदारी है, समृद्धि है, एक दूसरे को मदद करने की इच्छा शक्ति है। उनको अपन ज्यादा दिन हमारे इंग्लैंड का गुलाम नहीं बना सकेंगे। अगर उसको गुलाम बनाना है तो उनकी जो संस्कृति है वो जड़ से उखाड़ना पड़ेगी, उनकी शिक्षा पद्धति बदलना पड़ेगी। और उसकी शिक्षा पद्धति बदलो, यही उन्होंने कहा था, और शिक्षा पद्धति बदल दी। 1835-36 में जो भारत में कायदा हुआ शिक्षा पद्धति का, वही अभी तक लागू था। अभी 2025 को अपन शिक्षा पद्धति बदली, लेकिन वही शिक्षा पद्धति लागू होती 1986 में थोड़ा बदल हुआ। हमारे विनोबा जी भावे ने कहा था, उन्होंने लिख कर रखा है विनोबा जी भावे ने, कि जब हम स्वतंत्र हुए और हमारा यूनियन जैक, इंग्लैंड का यूनियन जैक निकाला, हमारा भारतीय तिरंगा झंडा फैलाया, उसी दिन हमारी शिक्षा नीति बदलना चाहिए थी। विनोबा जी भावे ने बोला शिक्षा नीति अभी बदली, 75 साल के बाद शिक्षा नीति बदली। हमको शिक्षा देना है तो क्या देना है? अरे हमारे पास कम शिक्षा थी, हमारे पास कुछ कम शिक्षा नहीं थी, बहुत सी शिक्षा हमारे पास भी थी। नालंदा तक्षशिला था, अनेक बहुत थे। ये तो बहुत साल पहले पुरानी। नालंदा कब नष्ट हुआ? 1193 में 1193 में नष्ट हुआ। वो बख्तरुद्दीन खिलजी आया, उन्होंने बीमार पड़ा तो उसके साथी लोग बोले कि इसको कोई दवा देगा, कोई यहाँ डॉक्टर है का, कोई यहाँ हकीम है का, कोई यहाँ वैद्य है का। लोगों ने बोला नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के प्रमुख है, उनसे बुलाओ और वो दवा देंगे। वो आए, उन्होंने नाड़ी परीक्षण की और बोला मैं इसको दवा देता हूँ। तो बख्तियारुद्दीन खिलजी बोला मैं इनकी दवा नहीं लूंगा, ये काफर लोग है। तो भी लोगों ने कहा कि नहीं वैद्य साहब दवा दो, पर उन्होंने बोला कि ये कुरान पढ़ता है का, तो उन्होंने कहा कि कुरान पढ़ता है। तो उन्होंने एक भस्म दिया, पाउडर ली और कुरान के पन्ने को लगाते थे और उसको बख्तियार खिलजी को उंगली जीभ को लगाना, पन्ना पलटना, उंगली जीभ को लगाना, पन्ना पलटना, ये आदत थी। तो पंडा का भस्म उंगली को लगता था, उंगली का भस्म जीभ को लगता था और जीभ के पेट में गया, वो ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने ऑर्डर की ऐसी विद्या अपने देश पे नहीं है,
ये विद्या हमारे देश पे नहीं है, इसको खत्म करो, इसको किताबें जला दो। 3 मास तक, 3 महीने तक हमारा विश्वविद्यालय की किताबें जलती थी। अरे उसके बाद भी बहुत विश्वविद्यालय थे, मैं कुछ नाम बोलता हूँ, आपको याद करेंगे, ये नाम अभी किसी को पता भी नहीं। तक्षशिला का नाम है, पर तक्षशिला कहाँ ये भी हमारे बच्चों को मालूम नहीं। नालंदा भी चालू हो गया, अभी ये नालंदा विश्वविद्यापीठ हो गया, क्योंकि वो परराष्ट्र मंत्री के पास है। और नालंदा बिहार में था, तक्षशिला रावलपिंडी के पास था, विक्रमशिला बिहार में, अवधंतपुरी विश्वविद्यालय जो था बिहार में, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात, सोमपुरा विश्वविद्यालय बांग्लादेश, अब बांग्लादेश पे है, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय उड़ीसा, काशी उत्तर प्रदेश, जगदला पश्चिम बंगाल, मिथिला बिहार, काशीपुरम तमिलनाडु, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, रत्नागिरी उड़ीसा, उज्जैनी मध्य प्रदेश, मलकापुरम आंध्र प्रदेश, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, कृष्णापुर विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल, ये सब विश्वविद्यालय थे। यहाँ बाहर के लोग भी आते थे, नालंदा तक्षशिला उस समय आते थे बाहर के लोग, वो इधर संस्कृत भी पढ़ते थे, और संस्कृत पढ़कर इतनी सभी विद्या हस्तगत करते थे। ऐसे विश्वविद्यालय भारत में थे, लेकिन सब बंद करवाए, सब बंद करवाए। और आपसे मैं ये कहूंगा कि ये सभी विश्वविद्यालय जिन्होंने बंद किया है, MIT, ATD के विश्वविद्यालय के उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ आगे बढ़कर आपने विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कुछ उपलब्धियां उल्लेखनीय है। आपने न्याक लिया है, ये ग्रेड मिला है, और रैंकिंग में विश्व में कुछ रैंकिंग हुआ 1000 में, आपके विश्वविद्यालय का भी नाम है, ये अच्छी बात है। भारत में कुछ विश्वविद्यालय के नाम है, इसलिए इसका भी नाम है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे एक विश्वविद्यालय सर्वाधिक पसंदीदा बहु विश्वविद्यालय का विद्यार्थियों का समग्र विकास के लिए आदर्श विद्यालय बनाए। समग्र ज्ञान, विद्यार्थियों को ज्ञान, समग्र ज्ञान आना चाहिए। समग्र का अर्थ होता है कि कुछ पीछे नहीं छोड़ना, कुछ पीछे नहीं छोड़ना, जो अपने पास है वो सब देना। तो आप पुराण में एक श्लोक भी है, यत् कर्म तत् न बंधाए, यत् कर्म तत् न बंधाए सा विद्या विमुक्तये। तुम कर्म को बंधन मत डालो, कर्म करते रहो, काम करते रहो, पढ़ते रहो, उसको बंधन मत डालो, और विद्या विमुक्तपन बांटो। मैं सभी प्रोफेसर से अनुरोध करता हूं और उनसे विनती भी करता हूं कि आप ही नया नए पढ़ो। विश्व में जो नया नया होता है वो भी आत्मसात करो, और वहां विद्यार्थी को देते जाओ, रोज की रोज देते जाओ, विद्यार्थियों को नया नया देना। और जो पुराना है वो भी उनको मालूम करो। पुराना में आपने तो लिखा वो मालूम नहीं। मैं अभी टॉप में गया था, उधर मैं गया था तो उधर एक ठाचू दिखा, न्यूटन का छातू। वो ठाचू है न्यूटन का। न्यूटन ने क्या शोध लगाया? न्यूटन ने शोध लगाया कि गुरुत्वाकर्षण का कब लगाया? 1600 ईस्वी में लगाया, 1600-1700 ईस्वी में लगाया। और उसके पहले क्या, सफरचंद ऊपर नहीं जाता था, नीचे गिरता था, लेकिन उन्होंने शोध लगाया। उसके पहले पोलैंड के हमारे जो एक पोलैंड के कोपरनिकस थे, कोपरनिकस, उन्होंने भी ऐसा शोध लगाया था, लेकिन पोलैंड के लोगों ने मानने नहीं किया।
ये तेरा झूठ है, हमारे पुस्तक पे नहीं, आस्ती में नहीं, तो तू बोल मत। उसके बाद, उसके पहले, कोपरनिकस के पहले से 1150 भास्कराचार्य ने एक किताब लिखी है। भास्कराचार्य ने एक किताब लिखी, उसके 4 किताबें आगे हो गए। उसके एक किताब का नाम है लीलावती। ये किताब का नाम है लीलावती। लीलावती उसकी बेटी थी, वो विधवा थी करके उसके पास रहती थी। उन्होंने एक बार भास्कराचार्य को पूछा, बाबा तुम बोलते कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके बाजू घूमती, चंद्र उसके बाजू घूमता, तो गिरते क्यों नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया भास्कराचार्य ने कि वो बोले कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते, एक दूसरे को खींचते करके वो गिरते नहीं। इसका अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण। ये तो 1150 में लिखा, न्यूटन के पहले बहुत साल पहले, बहुत साल 1150 साल ऐसा था कि आक्रमणकारियों के, हमने वही चिंता थी आक्रमणकारियों की, और कोई ऐसा नहीं था वहां जब पेपर प्रसिद्ध करो उसको ये दो। उन्होंने लिख कर रखा है, बहुत लिखे। अरे भारद्वाज में एक किताब लिखा है, भारद्वाज यंत्र सर्वज्ञ, यज्ञ सर्वज्ञ, ऐसा एक किताब लिखा वो हमारे भारद्वाज ने। उसमें एक विमान कैसा चलता है, विमान का प्रारूप कैसा है, विमान कैसा उड़ता है, उसका कैसा बनाना है, ये सब उसमें लिखा है। और वो लिखा है तो उसके किताबें भी बन गई। और उसके एक शिष्य थे, उसके एक शिष्य बने थे कि वो हमारे यहाँ के बहुत जाने वाले पंडित शिवकर बापूजी तळपदे, वो मुंबई का विद्यार्थी था, वो शिक्षक था। लेकिन उन्होंने जब वो गया मथुरा में एक गुरुकुल में वो रहा। वो गुरुकुल था स्वामी दयानंद जी का। जब तक वो स्वामी बने नहीं थे उसके पहले वो गया और मथुरा के वो वहां पढ़ा, सीखा, उसको वहां संस्कृत अच्छी पढ़ाई की, मुंबई का था वो। तो उन्होंने वो किताब पढ़ी और उन्होंने एक मॉडल तैयार कर दिया, एक मॉडल तैयार किया। और 1895 में मुंबई के चौपाटी में उन्हें उड़ाया, वो 1500 फीट ऊपर गया, नीचे आया, छोटा मॉडल किया था। ये कब? 1895 में। और जब वो देखने केसरी में भी बात, उनका पेपर आया, पेपर में भी न्यूज आई थी, ऐसा मुझे लगा है एक किताब में भी छापा है। तो उसके साथ तो बहुत लोग भी थे हमारे, उन्होंने मदद की थोड़ी बार। तो सयाजीराव गायकवाड़ भी थे, ऐसा एक किताब में उसका उल्लेख भी है। और वो तळपदे ने किया तो उसको अंग्रेज के लोगों ने वो खर्च कर दिया और बोले ऐसा कुछ करना नहीं, नहीं जेल में डालूंगा। उन्होंने बंद करवाया। फिर इंग्लैंड की एक कंपनी आ गई, रिले, उन्होंने वो सब लिया उसके पास, आप दोनों मिला के करेंगे। उसको समझ में नहीं आया, उसका सब जो उन्होंने लिखा था वो समझ में नहीं आया। और वही पेपर उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी को दिया, अमेरिका के कंपनी को। और 1903 में राइट बंधु ने विमान का शोध लगाया, ये सभी तरह आया राइट बंधु ने। अरे यहाँ तो मुंबई में 1895 में, फिर 7-8 साल के बाद इतना शोध कैसा लग गया। तो ऐसे भी इतने पुराने मालूमात है अपने पास, वो भी हमारे विद्यार्थियों के पास देना चाहिए। नए पीढ़ी को हम बताना चाहिए कि हम भी पहले कम नहीं थे, ये भी बताने की जरूरत है। मैं इसी से मैं अपना, हमारे पास अपन कैसा जीवन बताना है, अपना जीवन कैसा बनाना है। तो हमारे विनोबा जी भावे ने बोला कि मनुष्य जन्म को आता है, मनुष्य जन्म लेता है तो उनके पास 3 कागज आते हैं।
एक कागज पे लिखा रहता है जन्म, तीसरे कागज पे लिखा मृत्यु, और दूसरा जो कागज है उस पे लिखा जाता है अपना जीवन। आप सभी जो डिग्री लिया, पदवी लिया, उन्हीं के जीवन का 1/4 हिस्सा तो गया, 1/4 हिस्सा गया। और अभी रहे 75 साल, 100 साल की उम्र पकड़ते तो अभी 75 साल की, अभी क्या क्या लिखा होगा मालूम नहीं, लेकिन जीवन में अच्छा रहना है, जीवन में अच्छा करना है, जीवन में अपना नाम होना है, तो अपने ये जो दूसरा पन्ना है उसमें अपना जीवन लिखा जाता है। वो ऐसा लिखना चाहिए कि आपको भी, आपके परिवार को भी, आपने जहाँ रहते वहां के भी, अपने देश को भी उसका गौरव होना चाहिए। ऐसा अपना पन्ना लिखना चाहिए। ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो विद्यार्थियों ने। और ये ध्यान रखा, आपका आयुष्य अच्छा जाएगा, आपका जीवन भी अच्छा होगा। ऐसा मुझे लगता है। आपके पास ताकत है, बड़ी ताकत है आपके पास, तो आप यहाँ उसका उपयोग कीजिए और मेहनत करिए, मेहनत करिए। और सफलता, आपने डिग्री ली, आप सफल हो गए। ये सफल अंतिम नहीं है, ये सफल अंतिम नहीं है। असफलता स्थायी नहीं है, असफलता वैसी के वैसी नहीं रहती। असफलता आप बदल सकते हैं। आपके पास ताकत है, हिम्मत है, आपका ज्ञान अच्छा हो तो आप सफलता जो है वो अपन बदल सकते हैं, सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये परिवर्तित करने की ताकत तरुण में है, ये तरुण में है। ऐसी ताकत आपने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सभी ओर से मैं आपने को विनती करता हूं कि बहुत सारे यहाँ आपकी महात्मा, मैं कोपरनिकस का बोला, उन्होंने बोला था भारत को, कोपरनिकस सॉरी तुम्हारे मैकालो का, कि ये सब इनको भीख मांगने को लगाओ, इनको गरीब बनाओ, तो भी आपने गुलाम बनेंगे, तभी आपने गुलाम बनेंगे। महात्मा गांधी जी का एक भाषण है, वो भाषण है 23 मार्च 1922 का, गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने भाषण किया था। उन्होंने कहा था, वो कोर्ट के सामने भाषण किया था, और उन्होंने कहा कि हमने भारत के लोगों को बहुत लूटा, भारत के लोगों को कुछ रहा नहीं, हम बहुत दुबले हो गए, गरीब हो गए, हमारे पास खाने का कुछ नहीं, हम तो मर रहे हैं, हम जिंदा मर रहे हैं। ये भाषण है महात्मा गांधी जी का। 1835 का मैकाले बोलता है ये बहुत समृद्ध है, वो देश बहुत समृद्ध है, वहां चोर नहीं, वहां भीख मांगने वाला नहीं। और 22 का भाषण महात्मा गांधी का है, हम भूखे मर रहे। ये हमारे देश की अवस्था थी, ये हमारे देश की अवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। ये भी आप ध्यान रखो। और फिर से अपना देश को कोई गुलाम बनाने की इच्छा मत करे, कोई उसको सपना भी न गिरे। इतना मजबूत अपना देश होना है, इतना मजबूत अपना देश बनाना है। और आपके सभी के तरुण लोगों के भरोसे पे, आपके सभी तरुण लोगों के भरोसे पे अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जब स्वातंत्र का हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, जब हमारा भारत पूरा विकसित होगा, पूरा भारत विकसित करेंगे और हम विश्व गुरु बन जाएंगे। ये आपके भरोसे पे, आपके ताकत के, आपके ज्ञान को बाहर लोग डरते हैं। मुझे ये भी मालूम है वहां अमेरिका में जो वैली है, वो वैली तो आपको बनाया है
कि हाँ, सिलिकॉन वैली में आज जितने कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां वहां है, तो वहां के लोग बोलते हैं कि आपने वहां जो नौकरी करने को गए ना, वो बोलते हैं कि सिलिकॉन वैली में आज भी 70-80% भारत के लोग काम करते हैं, भारत के इंजीनियर काम करते हैं। वो एलन मस्क ने एक बार बोला था, पेपर में आया था, एलन मस्क मोबाइल वाला, वो बोला था कि अमेरिका को और भी प्रतिभाशाली इंजीनियर की जरूरत है। एलन मस्क बोलता है। कई दिन के बाद ट्रम्प बोलते हैं कि हमें टैलेंट चाहिए, हमें टैलेंट चाहिए। और अभी भी जो टैलेंट है, अभी ट्रम्प ने बोला था भारत का कोई बच्चा पढ़ने को आया तो उसको 80 लाख रुपए भरना पड़ेंगे। बाद में उन्होंने बोला बस 80 लाख भरो, आओ यहाँ पढ़ने को, ये भी बोला है। और आज ही बोला मैं अगले वर्ष में भारत में आऊंगा, ये भी बोला हूं कि उनको हमारे लोक संख्या की डर नहीं, हमारे सैनिकों का डर नहीं, मेरे को डर है भारत के जो लोग हैं उनके बुद्धि का, उनके बौद्धिक शक्ति का डर है। ये इतनी बड़ी बौद्धिक शक्ति हमारे देश में है, हमारे सब टैलेंट है, सब इंजीनियर अच्छे हैं। और मैं कराड़ साहब को विनती करता हूं कि आप ऐसे टैलेंट बच्चे ही तैयार करो, आप ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे तैयार करो। और आपकी यूनिवर्सिटी, MIT विश्वविद्यालय, इसका भी किसी से स्पर्धा करनी है तो आप स्पर्धा करें, नालंदा से स्पर्धा करें, आप तक्षशिला से स्पर्धा करें। आप नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला लोगों के ध्यान में नहीं आना, वैसी यूनिवर्सिटी हमारे पुणे में है, महाराष्ट्र में पुणे शैक्षणिक क्षेत्र अच्छा है, इस पे आप बनाइए। और ये बनाना आप कर सकते, आपके पास उतनी ताकत भी है, सर्व प्रकार की यहाँ शक्ति भी आपके पास है, और वो करे। मैं यही करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत बधाई करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you very much, sir, for your convocation address. And dear friends, I would like to share with you, all of you, that back in 2015, when our university got the approval as the status of the university, it was none other than Honorable Shri Haribhau Bagde ji, Governor of Rajasthan today, who had duly signed, and this is how we have come to a full circle, and this is the journey of MIT ADT University 1.0. Thank you very much, sir, for gracing this occasion.